गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और काफी सारे सम हो चुके हैं। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 ही बाकी है, उसमें भी शायद 3 या 4 सम हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सम हम लेते हैं एक्सरसाइज 8 का 3rd नंबर का सम और बहुत ही ज्यादा इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी हियर we have to find area, but region lies in only first quadrant, okay, and bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4. First see here we have given curve y is equal to 4x square, which is obvious equation of parabola, and its vertex is origin, that is 0 0. See here I write first information about given curve. Here y is equal to 4x square is equation of parabola, and its vertex is origin, that is 0 0, and we know that y is equal to 4x. Put here x is equal to minus x, then equation doesn't change. It means given curve is symmetry about y-axis. See here and say y is equal x square is equal to y by 4 and sign of y is positive. Then shape of given curve is u. Okay. Now I draw the graph. See here y-axis ये हो गई हमारी x और शेप है u वाला। तो ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। यहां पे इक्वेशन लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके, इक्वेशन और पैराबोला ये हमारी हो गई ओरिजिन। अभी बाकी काम है x इज इक्वल टू 0, मतलब हो गया हमारा y एक्सिस, ये है x इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन वो है y इज इक्वल टू 4 विच इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, नाउ सी हियर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर विच इज पैराबोला, x is equal to 0, that is y axis, y is equal to 1 and y is equal to 4। तो ये जो रीजन हमारा होगा, ये रीजन का एरिया हमें निकालना है। ऑब्वियस लिमिट यहाँ पे कौन सी लेने वाले हो, y is equal to 1 to 4, तो लिमिट आएगी y, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x को। देखो कैसे, नाउ y is equal to 4x, then x square is equal to y by 4 implies x is equal to, taking square root both sides, then 1 by 2 and square root of y is y raised to 1 by 2. Say this is f of y. Now I find the area of bounded, given bounded region. See here. Now I is equal to integration, लिमिट आएगी 1 to 4 f of y dy। I is equal to integration 1 to 4 f of y, मतलब हो गया 1 by 2 y raised to 1 by 2, 1 by 2 y raised to 1 by 2 dy। Now 1 by 2 take outside and integration of y raised to 1 by 2, which is y raised to 3 by 2 divided by 3 by 2। See here y raised to 3 by 2 upon 3 by 2, और लिमिट हमारी है यहाँ पे 1 to 4। Now I is equal to 1 by 2 taking numerator, then 2 by 3। Now I apply the limit. First apply upper limit, then put y is equal to 4, then 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2 to cut here, then we get I 1 by 3। Now see here 4 raised to 3 by 2, 4
that means 2 square. Okay, 2 to cut 2 cube, then answer is 8. 1 raised to any power, that is 1. 8 minus 1, we get 7. Then I is equal to 7 by 3. Therefore required area of bounded region A is equal to modulus of I is equal to 7 by 3 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट सम बहुत ही बढ़िया है. ओके, उसमें मॉड्यूलस फंक्शन की बात की हुई है. कैसे काम करेंगे वो देखते हैं. क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं. देखो यहाँ पे, और वो है सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8. क्या है? स्केच द ग्राफ. स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to sketch the graph of y is equal to modulus of x plus and evaluate integration minus 6 to 0 modulus of x plus 3 dx. बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही बढ़िया सम है. तो पहले क्या करने वाले, तो पहले जो फंक्शन हमारा है y is equal to modulus of x plus 3 उसको डिफाइन करेंगे. मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं. तो y is equal to modulus of x plus 3 is equal to modulus of x plus 3 is equal to same x plus 3 if x plus 3 is positive. That means x plus 3 is greater than or equal to 0. X plus 3 greater than or equal to 0. 3 take opposite. It means x is greater than or equal to minus 3. Then modulus of x plus 3 same as x plus 3. Okay. And modulus of x plus 3 is equal to minus x plus 3 if x plus 3 is less than 0. That means x is less than minus 3. x is less than minus 3. तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो पॉइंट्स हमें चाहिए, कई सारे पॉइंट्स चाहिए, लेकिन उसके बाद ये लिमिट भी फाइंड करें -6 to 0. ओके, यहां पे जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है उसकी लिमिट क्या है? -6 to 0. देन वी टेक वैल्यू ऑफ x इज -6, then -5, -4, -3, -2, -1 and 0. See here now. If x is equal to -6, then y is equal to, put here x is equal to -6. -6 plus 3, that is -3, and modulus of -3, which is 3. And if x is equal to -5, then y is equal to -5 plus 3, we get 2. If x is equal to -4, then y is equal to -4 plus 3, we get 1. And if x is equal to -3, then y is equal to, see here, if I take x is equal to -3 plus 3, we get 0. If x is equal to -2, then y is equal to -2 plus 3. -2 plus 3, we get +1. Next, if x is equal to -1, then y is equal to 2. And last, if x is equal to 0, then value of y is 3. Then we have total 6 point, 7 point. First point is -6, 3. X coordinate -6, y coordinate 3. Next -5, 2. Then -4, 1. -3, 0. -2, 1. Next -1, 2. And the last point is 0, 3. Now I draw the graph, sketch the graph. See here, first I draw y-axis and then x-axis. See here, थोड़ा सा इस साइड पे ड्रॉ करता हूं.
तो ये हो गए हमारी y एक्सिस। अब x एक्सिस की बात करने वाले हैं, तो ये हो गई हमारी x एक्सिस। ओके, अब -6 x की वैल्यू कहां तक है? -6 तक। तो x की वैल्यू -6 तक मैं ले जाता हूं। -1, यहाँ पे -2, -3, -4, -5 और लास्ट -6, और यहाँ पे है 1, 2 और 3, और ये हो गई हमारी ओरिजिन। यहाँ पे जो -6 है वहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो -6 के आगे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, -6 है, तब y की वैल्यू कौन सी है? 3, तो ये वैल्यू यहां पे आने वाली है। -3 है तो यहां पे वैल्यू 0 है। ओके, -5 देन -2, तो ग्राफ ऐसा आने वाला है। और हम जानते हैं कि अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो उसका शेप हमेशा v जैसा आएगा, v शेप। ओके, अल्फाबेट में जो v आता है ना उसके जैसा ही शेप उसका हमेशा आता है। तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहां पे ये जो ग्राफ है, अभी हमको क्या फाइंड करना है? -6 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x + 3, तो उसके टोटल 2 पार्ट्स होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे -3 है, वहां से लेके -6 तक और -3 से 0 तक। ओके, तो जो ये हमें फाइंड करना है उसकी बात करता हूं मैं। देखो, नाउ i इज इक्वल टू, इसको मैं i बोल देता हूं। नाउ i इज इक्वल टू -6 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x + 3 dx। i इज इक्वल, अब इसके दो पार्ट्स कर देता हूं, -6 to -3 मॉड्यूलस ऑफ x + 3 dx, और दूसरा पार्ट से -3 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x + 3 dx। देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर -3 से ज्यादा है तो मॉड्यूलस ऑफ x + 3 = x + 3, और -3 से कम है तो -x + 3 आने वाला है। तो यहाँ पे i = -6 to -3, मतलब x की वैल्यू -3 से कम है, तो -3 से अगर कम है तो मॉड्यूलस = -x + 3। देन आई राइट हियर -x + 3 dx प्लस -3 to 0, यहां पे x की वैल्यू -3 से ज्यादा है। देखो अगर -3 से ज्यादा है तो मॉड्यूलस ऑफ x + 3 = x + 3 dx। नाउ i = -6, सॉरी माइनस को यहां पे कॉमन ले लेता हूं और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, और x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x² 3 है, इसका इंटीग्रेशन यहां पे -6 to -3 प्लस यहां पे x का इंटीग्रेशन सेम x² 3x लिमिट -3 to 0। नाउ हियर फर्स्ट आई अप्लाई अपर लिमिट -3², 9/2। now put here x = -3 into 3 -9। now I apply lower limit -6², 36/2, that is 18। same put here x = -6 into 3 -8। now for second bracket की बात करते हैं तो x की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो यहां पे तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट x = 3 here, 3², 9/2 प्लस 3 3 9, 18 यहां पे कैंसिल हो गया, 9/2 -9, 9/2 -9 we get -9/2, then minus of -9/2, यहां पे भी माइनस। ओके, यहां पे शायद माइनस आने वाला है, 9/2 प्लस 9। ओके सॉरी, यहां पे लोअर लिमिट -3 रखी तो यहां पे माइनस आएगा, तो 9/2 -9 सेम वी गेट -9/2, माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2, 9/2 प्लस 9/2 वी गेट 9। तो हमारे हमको जो इवैल्यूएट करना था, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, उसकी वैल्यू हमको मिल गई, i = 9। कुल मिलाकर सम बहुत इजी है, इसकी फिगर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
और ये इवैल्यूएशन तो बहुत ही इजी है। ये सिर्फ इवैल्यूएशन तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके भी आप ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके, अभी एक और सम लेने वाले हैं, एक और सम लेते हैं। ओके, चलो बच्चों एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है 6। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई नहीं है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 16x होता, y इज इक्वल टू 4x होता, तो हम अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां भी अननोन टर्म आ जाती है हम थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इस सम में, और आने वाला भी नहीं चाहिए। देखते हैं कैसे काम करते हैं। यहां पे जो कर्व है पहला y² इज इक्वल टू 4x व्हिच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इट्स वर्टेक्स इज ऑब्वियस 0 0। हियर y² is equal to 4ax is equation of parabola and its vertex is origin। ओके, और जो दूसरा कर्व है एंड y is equal to mx which is equation of line is equation of line। अब हम क्या करने वाले हैं, तो दोनों कर्व हमारे पास है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे, देखो यहां नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पहला इक्वेशन हमारा है y² इज इक्वल टू 4ax और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। यहां से x को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइड बाय m। तो x की वैल्यू यहां पे रख लेता हूं, therefore y² is equal to 4a, value of x is y upon m। take this side, then we get y² minus 4a upon m into y is equal to 0। see here from these two y is common, then bracket y minus 4a upon m is equal to 0, then y is equal to 0 और second value y minus 4a upon m is equal to 0, then we get value of y is 4a upon m। here we get total 2 value of y, then there are total 2 intersection point। okay, here now I put this value in result 2। okay, if y is equal to 0, if y is equal to 0, then 2 implies, put here y is equal to 0 is equal to mx, then we get value of x is also 0, then our first intersection point is 0 0, that is origin। now what second value of y, if y is equal to 4a upon m, then 2 implies, put y is equal to 4a upon m in second equation, 4a divided by m is equal to mx। now m multiply denominator, then we get x is equal to 4a upon m square, then there are total 2 intersection point। now I write intersection point of given curve, therefore intersection point of given curves, first point is origin and second point a, x coordinate is 4a upon m square, 4a upon m square, and y coordinate is 4a upon m। now I draw the graph। ओके, तो यहां पे जो y² इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला का इक्वेशन। ओके, वहां पे y इज इक्वल टू -y रख दो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, देन गिवन इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड से हियर
we take a is positive, then coefficient of x a is positive, then shape is like c. Okay, see here, ये हो गए हमारे y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस. ओके, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया. अच्छी तरह से भी आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा. ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0 और दूसरा है 4a अपन m स्क्वायर 4a अपन m. तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, ये पॉइंट हो गया O0 0. ये दूसरा पॉइंट है A. x कोऑर्डिनेट इज 4a अपन m स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 4a अपन m. ये इक्वेशन है लाइन का y इज इक्वल टू m. अब देखो यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे आप कैसी भी लाइन ड्रॉ करो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. ओके, हम लिमिट x की या फिर y की ले सकते हैं. देखो यहाँ अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की, अगर ऐसी लाइन ड्रॉ की तो कोई भी लाइन है उसके दोनों एंड पॉइंट दोनों कर्व को टच कर देते हैं. मतलब हम x की लिमिट ले सकते हैं या फिर y की लिमिट. चलो तो बात करते हैं y की लिमिट की. तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा. तो दोनों कर्व में से x को सब्जेक्ट बना देता हूं. नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन x इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a इज इक्वल टू fx, f ऑफ y, सॉरी f ऑफ y. एंड जो दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू mx, यहां से भी x को सब्जेक्ट बना लिया, y डिवाइड बाय m विच इज g ऑफ y. नाउ i इज इक्वल लिमिट हम जानते हैं, लिमिट बाय y की लेने वाले हैं. y की लिमिट मतलब 0 to 4a upon m. See here, I is equal to, now I is equal to integration 0 to 4a upon m bracket f of y minus g of y, f of y minus g of y dy. I is equal to integration 0 to 4a अपन m. f of y क्या है? y स्क्वायर अपन 4a. तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a माइनस g ऑफ y, that is y अपन m dy. Now integration here 1 upon 4a which is constant, then take outside, and integration of y square which is y cube by 3. और लिमिट हमारी है 0 to 4a डिवाइड बाय m minus 1 upon m outside, the integration of y is y square by 2, 0 to 4a upon m. I is equal to 1 upon 4a as it is. Now first I apply upper limit 1 by 3 as it is, 4a upon m whole cube, that is 64a cube divided by m cube, minus lower limit which is 0. 1 upon m as it is in bracket 1 by 2. First apply upper limit, then 4a upon m whole square which is 16a square upon m square, minus lower limit is 0. Now see here, 16 4s. Okay, one time यहाँ पे a कट हो जाएगा, तो पहली टर्म हमको मिल गई 16a square डिवाइड by 3m cube. Okay, 16a square divided by 3m cube minus, see here, 8 2s and minus 8a square divided by m. Now LCM is 3m cube. Now I multiply here 3. 16a square minus 8 3s are 24a square divided by 3m cube. 16a square minus 24, that is minus 8a square, minus 8a square divided by 3m, and therefore area A is equal to modulus of I is equal to modulus of minus 8a square upon 3m cube. Modulus of minus 8a square upon 3m cube, then 8a square upon 3m cube square
यूनिट विच इज अवर फाइनल आंसर के बहुत ही बढ़िया सम था। यहां पे ये जो अननोन टर्म है ए और एम, ओके, यही सोच के हम थोड़ा कांपते हैं कि ये सम थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह पे शायद 16x दे दे आपको, y इज इक्वल टू 5x दे, तो इसी टाइप का ये सम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, काफी सारे सम बाकी है अभी, वो अगले लेक्चर में, ठीक है।